students, a very good afternoon. I hope you all are doing well. So in today's lecture, we are going to move forward with the Canterbury Tales written by Geoffrey Chaucer, right? So I have made sure that the handouts are uploaded on your application. Please एक बार उसको check कर लीजिएगा that the handouts are there or not, right? So the handouts are related to the general prologue and certain tales with regards to Chaucer's works, and we have I have made sure that there is also a handout uploaded with regards to your Pilgrim's Progress and other things as well, right? ये थोड़ा आपका कुछ चीजें जो है Chaucer के contemporaries, like we have William Langland, we have John Gower, right? So John Gower or William Langland के जो works है that you are supposed to cover in today's lecture, right? In the sense that in the homework we'll try to make sure that Chaucer की जो age है उसमें से कुछ कुछ important चीजें with regards to whatever I am supposed to teach you वो हो जाए cover. We also cover the contemporaries of Chaucer as well, right? And then we will be having a class with regards to your previous year questions. So hopefully आज try करते हैं if we are left with the contemporaries of Chaucer. Contemporaries of Chaucer will be completed then इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, तो होमवर्क प्लीज ध्यान से करके आना है सबने, क्योंकि मैं आप लोग के लिए क्वेश्चंस लेके आऊंगी एंड आई थिंक ऑन फ्राइडे वी विल बी हैविंग द PYQ सेशन, क्योंकि टुडे इज वेंसडे, राइट? वेंसडे को वी विल ट्राई टू कवर चॉसर फर्स्ट ऑफ ऑल. Let's try to see if we could cover the contemporaries as well in today's lecture itself, right? So contemporaries में हमारे कुछ एक ही आ जाते हैं, the moral Gower आ जाते हैं, John Gower, right? We have William Langland, we have Sir John Mandeville and John Wycliffe, है ना? Wycliffe क्यों important है in the age of Chaucer? Because of the fact that we have learned, we have known it in the last lecture that yes, of course, this was the person who somewhere or the other was related to the publication of the Bible, related to the translation, not the publication, the translation of the Bible for the very first time in English language, right? Because it was usually written in Latin में लिखी जाती थी, right? So that only the priests, only the Pope and the clergymen could have that hold over the authority, right? So these are certain things we covered. लास्ट क्लास में दिया हुआ होमवर्क आई होप आप लोग कर लिए होंगे, राइट? नहीं हुआ है तो आज के दिन को मेक द मोस्ट ऑफ इट, बिकॉज कुछ कुछ तो हम टेल्स जो है यहीं से करने की कोशिश करेंगे. कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन जो आई वुड वांट आप अपने बुक में इनकॉर्पोरेट कर ले और इन योर नोट्स, हाउएवर यू वांट टू प्रोसीड, दैट्स टोटली योर डिस्क्रिशन. तो अगर हम देखें जॉफ्री चॉसर फ्रेंच पीरियड की बात करते हैं, है ना? फ्रेंच पीरियड में ही रोट द वर्क द बुक ऑफ द डचेस. ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, समरी आप लोग खुद देखेंगे, ठीक है? समरीज एटसेट्रा का होमवर्क मैंने आप लोग को खुद करने के लिए दिया हुआ है. दैट इज सपोज टू बी कवर्ड बाय यू ऑल diligently, right? I trust you all on that. Okay. With regards to the book of Duchess, certain important facts which are important is it was the first dream vision written by Chaucer. First dream vision है ये, ठीक है? यानी कि ये बताया जाता है कि ये पोम जो है, ड्रीम विजन क्या होती है? ड्रीम विजन इज बेसिकली when a poet tells that this particular poem, not in a literal manner but in a metaphorical way, the poet says that I fell asleep and I woke up writing this poem, राइट? सो बेसिकली ड्रीम विजन है कि मैंने ये सपने में मेरे एक विजन आया था, उसके बेस के ऊपर जो है आई हैव रिटन अ पीस ऑफ पोएट्री, राइट? नाउ लास्ट क्लास में आई टोल्ड यू ऑलरेडी दैट देयर वाज दिस पेट्रन ऑफ चॉसर हु वाज नोन एज जॉन ऑफ गॉट, एंड कल ही मैंने ये चीज बता दी थी कि ये बुक जो थी इट वाज डेडिकेटेड टू जॉन ऑफ गॉन्ट्स डेड वाइफ. इसलिए इसको दूसरे नाम से जाना जाता था. डेड वाइफ का नाम क्या था? ब्लॉन्च, ठीक है? इसलिए इसको द डेथ ऑफ ब्लॉन्च के नाम से भी जाना जाता था. ये मैंने आपको कल लिखवाया था. आई मेड श्योर दैट यू गाइस हैव नोटेड दिस थिंग डाउन. तो इट्स द फर्स्ट ड्रीम विजन रिटन बाय चॉसर, राइट? इसमें जो नाइट है दैट इज यू नो समवेयर और द अदर, जो नाइट है ही इज ड्रेस्ड इन ब्लैक ड्रेस में है,
and he is very sad. Who is he referring to? It is referred to or maybe dedicated to John of Gaunt. And we have also the mention of the good fair white lady, right? Who is this good fair white lady? This is the knight's beloved. ऑफ कोर्स सी आर जब मैं लिख रही हूं इसका मतलब है क्रॉस रेफरेंस, तो ये क्रॉस रेफरेंस या डेडिकेशन है टू ब्लॉन्च, ठीक है, जॉन ऑफ गॉन्ट की वाइफ थी जो, जॉन ऑफ गॉन्ट की वाइफ थी जो, उनको, ठीक है. सो ही इज द नाइट इज समवेयर और द अदर ट्राइंग टू डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ हिज बिलवेड, सो ऑन एंड सो फोर्थ इन दिस पर्टिकुलर वर्क ऑफ हिज, राइट. एंड इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोलॉग दैट कीप्स ऑन गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग. तो ये कुछ चीजें हैं जो कि कौन सा किसको रेफर करा है, कल की क्लास में भी हम लोग ने वैसे इस चीज को नोट डाउन कर लिया था, राइट. एंड मीनवाइल एक चीज जो है, पोएट जो क्या चीज पढ़ रहा होता है, एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, वन मोर फैक्चुअल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हियर टू नोट डाउन इज दैट इसमें द पोएट slept while reading ओविड, ठीक है. तो हम लोग को पता है ओविड जो है ही वॉज अ क्लासिकल राइटर. इफ वी ट्राई टू टॉक अबाउट हिम, राइट, ओविड ने मेटामॉर्फोसिस लिखी है जिसपे फ्रांस काफ्का की मेटामॉर्फोसिस जो है वो बेस्ड है, राइट. सो ओविड वॉज अ वेरी ancient classical figure from whom Chaucer was also inspired. If you remember, I told you in the last class about it, right? So that thing is there. These are certain facts and figures that are related to the book of the Duchess. ठीक है, ये हो गया. Then we have the House of Fame. House of Fame again एक poem है. House of Fame में we see that this is a poem which is divided into 3 books, right? तो House of Fame, if you can see it here, The Legend of Good Women, it is not written in your book, The House of Fame. तो House of Fame के बारे में लिखिए नोट्स में या जैसे भी. इसके ये स्पेलिंग रियल थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे. These were the correct spellings. ठीक है. हाउस ऑफ फेम की बात करें तो इट इज अ वेरी लॉन्ग, इट इज ऑल्सो अ पोम, ठीक है, इन हाउ मेनी बुक्स, 3 बुक्स, ठीक है. तो ये चीज इंपॉर्टेंट है. ऑल्सो इट इज वन वर्क विच इज ऑल्सो अनफिनिश्ड वर्क है, जस्ट लाइक कैंटरबरी टेल्स, ठीक है, जस्ट लाइक कैंटरबरी टेल्स. एंड दिस इज ऑल्सो अ ड्रीम विजन. This is also a dream vision, right? And who was one such factor? मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि चौसर जो थे, he was very much influenced by Ovid, Dante and Boccaccio and Petrarch, right? So इन चारों से Chaucer was really much influenced. So this particular work of his, The House of Fame, is inspired by Dante's Divine Commedia, right? Inspired by Dante's Divine Commedia, right? एंड इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, इसमें पहली दफा हमें देखने के लिए मिलता है, दैट इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मेंशन ऑफ वर्ड्स सच एज एक तो है गैलेक्सी एंड सेकेंडली मिल्की वे. फर्स्ट टाइम गैलेक्सी एंड द मिल्की वे का जो है, द मिल्की वे का रेफरेंस हमें इस पर्टिकुलर, यानी कि पहली दफा जिसने इस इन वर्ड्स को इन पीस ऑफ लिटरेचर यूज करते हुए देखा है, वो इसमें हमें मेंशन देखने के लिए मिलता है, राइट. वी ऑल्सो सी दैट इन दिस पर्टिकुलर टाइम ओनली दिस पोम इज रिटन to show that how any poet can write and talk about the lives of the famous people, right? How any poet
कैन रिपोर्ट अबाउट लिखिए, रिपोर्ट कैन famous people, right? Famous people. ठीक है, तो ये एडिशनल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो आप लोग को वैसे खुद से भी ढूंढनी चाहिए जब आप लोग पढ़ रहे होते हैं. देन वी हैव द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स. फाउल्स, 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 जैसे मर्जी, ये तीनों स्पेलिंग करेक्ट है. तीनों के तीनों स्पेलिंग्स जो है दे आर करेक्ट. ओके, नाउ कमिंग अबाउट एंड टॉकिंग अबाउट द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स. फाउल्स क्या होते हैं? फाउल्स आर बर्ड्स. ठीक है, बर्ड्स को बोला जाता है. तो उन्होंने एक सभा बिठा रखी है, एक पार्लियामेंट बिठा रखी है, राइट, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट देयर आर 3 टर्सल ईगल्स हु आर मेल्स एंड एक फॉर्मल ईगल है हु इज द फीमेल, एंड दे वांट टू काइंड ऑफ अ स्वयंवर और समवेयर और द अदर दे आर ट्राइंग टू गेन द हैंड ऑफ द फॉर्मल ईगल, राइट. तो ये जो फॉर्मल ईगल है, हाउ शी एंड्स अप बीइंग विद समवन और नॉट, ये आप लोग पढ़ेंगे. ठीक है, वैसे मैंने दिया था होमवर्क आप लोग को. इसमें पहली दफा हमें देखने के लिए मिलता है पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स. ही यूजेस द राइम रॉयल, राइट. राइम रॉयल हमने कल करा था ना. राइम रॉयल इज अ 7 लाइन स्टैंजा. 7 लाइन स्टैंजा, ए बी ए बी बी सी सी, ए बी ए बी बी सी सी. ठीक है, और इसमें दिस इज द फर्स्ट वर्क वेयर वी सी द मेंशन ऑफ फर्स्ट टाइम फॉर द मेंशन ऑफ द मेंशन ऑफ सेंट वैलेंटाइंस डे. फर्स्ट मेंशन ऑफ सेंट वैलेंटाइंस डे, राइट. एंड ऑल्सो ये किसको रेफर करी गई है, क्यों और किसको ये रेफर करी गई है, ये डेडिकेटेड है. ठीक है, इन अ नेगेटिव स्टार्स. ठीक है, डेडिकेटेड इट इज एन एलिगेरी ऑन द बिट्रोथल ऑफ किंग रिचर्ड द सेकेंड. किंग रिचर्ड द सेकेंड जो 9 साल का बच्चा किंग बन गया था. ठीक है, सो इट्स एन एलिगेरी ऑफ किंग रिचर्ड the second's betrothal to Anne of Bohemia. ठीक है, so ये important fact है. मतलब जो भी मैं लिखा रही हूँ ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट ही है, सिंपली, राइट. एंड अगला है, ये PYQ आ चुका है आपका, कि पार्लियामेंट ऑफ फाउल जो है बिगिन होती है विद व्हाट? बिगिन्स विद द पोएट रीडिंग Cicero's work. Cicero, Roman poet. ठीक है, Cicero's work, The Dream of Scipio, right? The Dream of Scipio. The Dream of Scipio. ठीक है. तो बेसिकली पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स में बर्ड्स जो हैं दे आर चूजिंग देयर मेट्स. तो इसके लिए सभा बिठा रखी है. द बर्ड्स आर चूजिंग देयर मेट्स. और ये इसकी बिगिनिंग मैंने आपको बता दी. एंड इट एंड्स विथ द सीजन. किस सीजन में एंड करते हुए दिखाते हैं? समर में.
ठीक है, समर में इसकी एंडिंग दिखाते हैं. So basically what am I trying to do here is that I'm trying to make sure that you are reading the summaries of your own, right, on your own, and जो भी मैं यहाँ पे apart from the summaries etc I am giving to, going to give you the information factual etc, you guys are doing and noting it down. तो वो extra push भी मिल रहा है. ठीक है, note down. Right. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टाइम राइम रॉयल यूज नहीं हुई थी. फर्स्ट टाइम राइम रॉयल आपकी यूज होगी ट्रॉयलस एंड क्रिसीड में. ठीक है, इसमें राइम रॉयल में लिखी गई है. चलिए, तो नेक्स्ट ही हमारा आ जाता है. नेक्स्ट अप वी मूव फॉरवर्ड टू ट्रॉयलस एंड क्रिसीड. अब इसी के बीच में ये जो क्रिसीड की इमेज है, चौसर विल पेंट अ नेगेटिव, अ फॉल्स सॉर्ट ऑफ क्रिसीड हियर, राइट, which the women of that age won't like and approve of. So at that point of time when he will be moving forward and ahead with his career, he will be writing another work which would be known as The Legend of Good Women, in which he will make sure that he is somewhere or the other making sure that he is apologizing for what he has mentioned in Troilus and Cressida, right? Mentioned as in the image of Cressida, and he will try to change that image of Cressida in The Legend of Good Women. तो फटाफट से लिखेंगे. इसमें पहली दफा जो है, इसमें फॉर द फर्स्ट टाइम राइम रॉयल जो है यूज किया जाता है. फर्स्ट टाइम राइम रॉयल स्कीम यूज की जाती है. इट्स अ बुक विच इज डेडिकेटेड टू, तभी मैं बार बार मॉरल गावर बोल रही थी. इट इज डेडिकेटेड टू ओ मॉरल गावर. चौसर कॉल्स गावर मॉरल गावर. तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक मिनट में यहाँ पे मार्क करना भूल गई थी ना, यहाँ पे ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. ठीक है, सिसिरो वाला, हु कॉल्स गावर द मॉरल गावर. ठीक है, इट्स चौसर एंड इट इज वन सच वर्क. It is one such work which is made up of 5 books. 5 किताबों में लिखा गया है. We see that how Troilus and Cressida, Troilus जो है उसको Cressida मिलती है पहली बुक में, हमें थोड़ा देखने के लिए मिलता है that Troilus discovers and he tries to woo Cressida, and when they are together we see in book 3, book 1 और 2 में इन दोनों का यही मेंशन हो रहा है, वही डिस्क्रिप्शन हो रही है इन बुक 1 and 2 that how Troilus is trying to woo Cressida and both of them then they are together. बुक 3 में हमें देखने के लिए मिलता है which turns a little climactic and we see that it celebrates their love. बुक 3 में भी अच्छा चल रहा है, क्लाइमैक्स की तरफ हम पहुंच रहे हैं. बोथ ऑफ देम आर वेरी हैप्पी कपल सेलिब्रेटिंग देयर लव एंड एवरीथिंग लाइक दैट. बुक 4 में बोथ ऑफ देम आर सेपरेटेड ड्यू टू सर्टेन रीजंस. एंड बुक 5 में हमें उन दोनों की जो है कंडीशन देखने के लिए मिलती है, दैट व्हाट हैज हैपेंड टू देम, राइट. सो दैट इज व्हाट वी सी इन बुक नंबर 5. ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा आपको जो भी आपने पढ़ा होगा थोड़ा रिविजन हो रहा है, ये इसलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है ताकि क्लास में जो बोला जाए उसको आप डॉट्स को कनेक्ट कर सको. ठीक है, नेक्स्ट अप वी हैव द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन. नेक्स्ट अप अच्छा, इसके बारे में कुछ चीजें लिखेंगे. द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, चौसर ने हीरोइक कपलेट पहली बार इसमें यूज किया था. फर्स्ट टाइम हीरोइक कपलेट जो है यूज किया जाता है इसमें. ठीक है, फर्स्ट टाइम इट इज यूज्ड इन हियर एंड वी सी दैट देयर इज अ प्रोलॉग एंड देयर आर 9 टेल्स. ठीक है, अ प्रोलॉग प्लस 9 टेल्स. अब 9th जो थी, 9th टेल वो सिर्फ स्टार्ट करी गई थी. ही डिड नॉट फिनिश दैट. व्हाट वाज द ओरिजिनल प्लान दो? द ओरिजिनल प्लान वाज
The original plan was to write and compose how many books? The original plan was to write 19 tales. 19 tales. But नहीं लिख पाए. ठीक है? He could not complete it. Hence, the legend of good women also stands incomplete or unfinished. जो भी आप लिखना चाहो. It is also a book which is incomplete. Right? एंड इट इज अ पैलिनोड. पैलिनोड हमने कल डिस्कस करा था ना, आप लोग सबको याद है, जब आप रिकैंट करते हो ऑफ वट एवर यू हैव मेंशन्ड इन द लास्ट वर्क, तो उसको सुधारने के लिए जब आप लिखते हो तो आप एक पैलिनोड बोला जाता है उसको. एन ओड और अ सॉन्ग in which the author tries to recant, right, whatever he has already mentioned in the previous work of his and wants to apologize basically, right? Now who were the women that he was trying to project in here? कौन कौन सी women के बारे में he has tried to talk about? Cleopatra, Thisbe, Dido, ठीक है. ही डीडो वाली वो आपने पढ़ी होगी. देयर इज दिस आल्सो अ प्ले दैट इज देयर, है ना. हिप्सिपल, PYLE, मीडी, लुक्रीज, सारी ग्रीक है, ऑलमोस्ट ग्रीक है. देन वी हैव अरियादना, राइट, फिलोमेला, Phyllis, and we have Hypermnestra. These are the women that he had tried to talk about in the tales that he wanted to write for them, right? Mentioned women ऐसे लिख सकते हो इनको. अच्छा, ठीक है. एक चीज हमारी ट्रोइलस एंड क्रेसीड में रह गई है, पहले आप इसको लिखे, देन आई विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज. वैसे दिया हुआ है, सॉरी, आपका पार्लियामेंट फाउल्स ऑफ जो है वो दिया हुआ है इटालियन पीरियड में. रियली सॉरी, पेज नंबर 23 है ना. चलिए, ट्रोइलस एंड क्रेसीड का मुझे क्या बताना था आपको, दैट ये किसका सोर्स, इन्होंने किसका लिया है? सोर्स इज बोकाशियोस इल फिलास्त्रेतो. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ये ट्रोइलस एंड क्रेसीड का है. दिस इज ऑफ ट्रोइलस एंड क्रेसीड विच इज ऑन पेज नंबर 24. ठीक है. राइट, लिखा भी हुआ है वैसे आपकी बुक पे, तो अगर आपको बुक में मेंशन करना है, बुक में हाईलाइट कर लीजिए. ठीक है. Now these were certain things with regards to the age of Chaucer, है ना, जिसमें हमने अदर वर्क्स को भी हल्का हल्का जो है डिस्कस कर लिया है. ठीक है. Now coming to what I had given you in the homework was you were supposed to make sure to find out that which were the two prose tales which were written in Canterbury Tales, है ना. वो चीज का मेंशन मैंने आपको करने के लिए बोला था. एक दफा पहले let's just look at here. Yeah. So the Canterbury Tales is influenced by Boccaccio's Decameron. Made you write this thing already down. 29 pilgrims meet at Tabardin. ये भी लिखवा दिया था. 29 pilgrims लिख लीजिए. अच्छा, इसके साथ add on करिएगा that there are two more people here. टोटलिटी में अगर आपके ऑप्शन में 29 दिया होगा, आप 29 ही चूज करेंगे. बट अगर हम होस्ट को और हमारे पोएट को ऐड करते हैं तो इट बिकम्स 31.
31 इंक्लूडिंग द होस्ट, कौन है हमारा होस्ट? हैरी बेली, हैरी बेली एंड द पोएट, पोएट कौन है? चौसर। ठीक है, एक चीज इसके साथ और ऐड करिए, दिस कैंटरबरी टेल्स वर्क जो है, इट इज रिटन इन द मोड ऑफ अ फ्रेम नैरेटिव, फ्रेम नैरेटिव which means story within a story। तो चौसर जो है वो लिख रहे हैं अबाउट स्टोरीज विच आर ऑलरेडी टोल्ड। सो कैंटरबरी टेल्स एज अ वर्क is a work about different tales told by different people, so it's a story within a story, that's why frame narrative बोला गया है कैंटरबरी टेल्स को, right? It is known as the frame narrative, right? How many stories are there? There are total 24 stories जो complete हुई थी, ठीक है? टोटल कितनी स्टोरीज जो कंप्लीटेड हैं? दिस इज ऑल्सो अ वर्क विच रिमेन्स अनफिनिश्ड ना, ये भी इनकम्प्लीट वर्क ही था इनका। 2 स्टोरीज चौसर ने खुद बताई हैं, चौसर टेल्स 2 स्टोरीज। योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चौसर ने कितनी स्टोरीज बताई हैं? 2 स्टोरीज, टेल ऑफ टॉपस एंड टेल ऑफ मेलिबस, राइट? या मेलेबी ही बोलते हैं इसको, BEE भी लिखा आ जाए कई बारी, तो इट्स द सेम एज टेल ऑफ मेलेबी, राइट? द टेल ऑफ मेलेबी। द कैंटरबरी टेल्स begin होती है with the knight's tale and ends with parson's tale। प्लीज नोट दिस फैक्ट डाउन, प्लीज डियर स्टूडेंट्स, ये फैक्ट लिख लीजिए। And it also ends with retraction, जो चौसर ने apology लिखी थी for the vulgar language that he has used in here, right? And unworthy, because I told you that he is also one such person who somewhere or the other is trying to talk about things which are double meaning, right? Which are incorporated in his fabulous tales, है ना? तो उन tales में जो vulgar language he has incorporated and used, so to make sure that he is somewhere or the other apologizing for those vulgar parts, he wrote a retraction। I'll read the retraction, retraction को लिखना नहीं है, बस एक दफा पढ़ेंगे। Let's move forward। कुछ और चीजें जो आप लिखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बड़े ही आराम से पूछी गई हैं, कैन फेच यू फ्री मार्क्स इफ यू नो देम, राइट? सो पीपल फ्रॉम द अपर क्लास इन कैंटरबरी टेल्स आर द नाइट, नाइट का बेटा स्क्वायर प्रायरस, जिन्होंने एक पेंडेंट पहना हुआ है विद अ ब्रूच विद अ लेटर ए, राइट? अमोर विंचित ओमनिया का लेटर बोल रही हूँ, अमोर विंचित ओमनिया का ब्रूच उन्होंने कैरी करा हुआ है। हमारे मंक हैं जिनको जो है बहुत ही हंटिंग एटसेट्रा का शौक है, फ्रायर है who knew the Tavern well in every town, and he would be one such person who would be helping women here and there, right? उनकी शादियां कराने के लिए, जिनकी एज गुजर जाती थी उनकी शादियां कराने के लिए, he used to be one such person who would try to help them पर मनी से। and sometimes फ्रायर है चर्च का बंदा, लेकिन आई टोल्ड यू दैट चौसर की टाइम पे द चर्च वाज करप्टेड, सो द फ्रायर विल आल्सो बी वन सच पर्सन हु माइट बी आस्किंग फेवर्स, सेक्सुअल फेवर्स फ्रॉम द वुमेन हु कुड नॉट मैरी, प्लस और कि या तो सेक्सुअल फेवर्स या तो फिर मॉनेटरी टर्म्स में मनी मांगते थे टू गेट द वुमेन मैरिड, राइट? देन वी हैव अपर क्लास में, ये जो मिडिल क्लास में, मिडिल को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। अपर मिडिल क्लास में मर्चेंट है, क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड है, ठीक है, जिसको पढ़ना बहुत पसंद है। मैन ऑफ लॉ जो है हमारे, ही इज वन सच पर्सन हु somewhere or the other he likes to appear very busy, that I have so much work to do and everything like that, so he appears he is one such person who appears really very busy when people are looking at him, or eventually, right? So है नहीं उतना busy, he is in debt but he does not let it be shown, कर्जे में डूबा हुआ है लेकिन दिखने नहीं देता है, ठीक है? Then we have the Franklin, then we have the 5 guildsmen, इनका रूल कम है। Then लोअर में कुक है, कुक का नाम दिया गया है, हम नाम को देखेंगे। शिपमैन है, ठीक है। देन वी हैव द डॉक्टर ऑफ फिजिक, डॉक्टर ऑफ फिजिक जो है ही इज अ डॉक्टर, ठीक है, ये लोगों को अपोथेकरीज के पास में भेजता है, जो हकीम है उनके पास में भेजता है दवाइयाँ लेने के लिए, लेकिन व्हाट ही आल्सो डज इज अपोथेकरीज, in what sense what I'm trying to say here is he loved
गोल्ड सो मच, था तो वो डॉक्टर लेकिन उसको गोल्ड से बहुत ज्यादा प्यार था। तो देयर इज अ मेंशन, अगर आपने जनरल लोग पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसमें डॉक्टर ऑफ फिजिक की बात ऐसे गोल्ड के साथ रिलेट करके पूछी गई थी, ठीक है। तो ये चीजें जो मैं बता रही हूँ ना, ये हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाली स्लाइड्स में, बट जब अभी मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से आई एम टेलिंग यू बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दीज हैव बीन आस्क्ड इन द नेट एग्जामिनेशन मल्टीपल टाइम्स। वाइफ ऑफ बाथ 5 बार शादी हो चुकी है, शी हैज बिन टू जेरूसलेम, राइट। शी इज वन सच पर्सन हु इज एक कान से बहरी है क्योंकि हस्बैंड ने बहुत जोर से थप्पड़ मार दिया था, तो शी इज डेफ फ्रॉम वन ईयर, राइट, बिकॉज हर हस्बैंड स्लैप्ड हर सो हार्ड, द फिफ्थ हस्बैंड स्लैप्ड हर सो हार्ड. She is having gap between her teeth, and she is one such woman who is having wider hips, so she is a healthy kind of a woman, right, bodily healthy, ठीक है. Then we have yeoman जो knight और squire के साथ help करने के लिए आया है. He is from the lower class, virtuous है, अच्छा है. Parson है, parson is the only वर्चुअस क्लर्जी मैन, क्योंकि हम फ्रायर देखते हैं, हम मंक देखते हैं, ये लोग जो हैं इनको अपने रिलीजन के साथ इतना रिलीजियस वर्क नहीं कर रहे हैं ये, ठीक है. बट हमें ना ही फ्रैंकलिन कर रहा है, बल्कि हमें योमन जो पार्सन है, पार्सन दिख रहा है कि ही इज द ओनली वन पर्सन who has been given the authority by the church to make sure that ये prayers etc करवाएं, ठीक है, पार्सन. और भी डिस्कस करेंगे इनके बारे में. तो एक ही मॉरल इसमें है, प्लाउमैन इज द ब्रदर ऑफ द पार्सन. प्लाउमैन जो है पार्सन का भाई है, एंड प्लाउमैन प्लाउ करता है तो ही गिव्स हिज टिथ ऑन टाइम. तो दोनों भाई जो हैं बहुत ही वर्चुअस हैं, ठीक है, बड़े अच्छे हैं, अच्छे विचारों वाले हैं, राइचियस हैं. एंड जो प्लाउमैन भी है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई टोल्ड यू कि चर्च अथॉरिटीज को टिथ यानी कि लैंड टैक्स जो है वो पे करना पड़ता था, जो लोगों के पास लैंड होता था फॉर फार्मिंग, right. So he's one such person who is very good with paying his taxes on time, right, everything like that. So just like his brother, he is a good person. जो immoral है वो है हमारे मिलर. आपने मिलर की टेल पढ़ी, रीव की टेल पढ़ी. मिनर, मैंसिपल, रीव, समनर एंड पार्डनर, ये सारे के सारे जो हैं ये इमोरल हैं, लोअर क्लास से एंड इमोरल. नोट देम डाउन प्लीज. ये कुछ चीजें लिखे. ठीक है, तो हमको दिख रहा है दैट ऑल ऑफ देम आर गोइंग ऑन. यही यही वाला वो पोर्शन है जो यूट्यूब पे फॉर फ्री अवेलेबल है. तो जब आप लोग के पास टाइम हो प्लीज देखिएगा, जब टाइम हो प्रिपरेशन में, ठीक है. सो वी सी वाइफ ऑफ बाथ है, प्रायरस है, ठीक है. और प्रायरस जो है ना, हमारी जो प्रायरस है, शी इज वेयरिंग द ब्रूच विद द टाइटल अमोर विंचित ओमनिया, विच मीन्स लव कंकर्स ऑल. अमोर विंचित ओमनिया लैटिन में लिखा गया है, which means love conquers all. Now, this prioress is one such lady who's very well poised, who's very well mannered and everything like that. कि एक morsel, when she used to pick one morsel to eat or something like that, she would not even let अपने lips के ऊपर stain तक नहीं आने देती थी, इतने beautiful तरीके से खाती थी, ठीक है. So she was one such lady who was very poised and mannered and ethical बोल रही हूँ, etiquettes के साथ जो हैं वो related. And she had ग्रे हाउंड्स थे उनके पास. कोई चूहा अगर वो she could see a rat being trapped in a mouse trap, so she would cry looking at that rat and everything, है ना. So she is been shown to be a person who is very kind hearted and very soft hearted, that when she sees some things happening around her which are somewhere or the other cruel, so she starts crying, right, she starts crying. So this is what we have. अच्छा, ये जो है ये लाइन से आपका कैंटरबरी टेल्स शुरू होता है. When that April with his shower suit, the drought of March hath pierced to the root. So हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है शुरुआत में कि अप्रैल में there is a return of spring and April rains, the burgeoning of flowers and leaves. And इसी point of time पे सारे pilgrims जो हैं, they are thinking that it's the right time to pay a homage to Saint Thomas Becket. So all of them are planning to make sure to go to Canterbury Shrine. Canterbury में जाने की सब लोग try कर रहे हैं, where they want to pay homage, जाके वहाँ पे प्रे करनी है. एंड दे आर सपोज टू थैंक थॉमस बेकेट, क्योंकि थॉमस बेकेट जो थे
he was one saint who was assassinated by the king के जो कुछ men थे उनके द्वारा assassinate कर दिए गए थे. इसी के बेसिस के ऊपर अगर मैं थोड़ा आपको क्रॉस रेफरेंस दूं, अगर आपको मैं क्रॉस रेफरेंस दूं तो यहाँ पे थॉमस बेकेट के ऊपर ही क्रॉस रेफरेंस में हम लोग देखते हैं टीएस एलियट का एक प्रोज प्ले है, ठीक है, which is named as Murder in the Cathedral. Verse play, sorry, not a prose play. Murder in the Cathedral जो है वो सेंट थॉमस बेकेट के साथ जो भी हुआ, whatever happened there, how people were so much taken aback by how Thomas Becket paid for their crimes and sins and everything and got his own self martyred, right, by the four men of the king, right. So this thing is a cross reference to whatever we are going to see in the modern period. Modern period में जो T.S. Eliot हैं, ये question आया हुआ है. This has been a question, so we see that this thing also happens in there, right. So that is what you all are supposed to note down. इस चीज को note करिए. पहले ही हमें किस चीज का reference देखने के लिए मिलता है? We see the reference of Saint Thomas Becket और उनकी shrine पे जो लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं because they want to pay homage to him, right. They want to pay homage to him. तो यहाँ पे he is somewhere or the other, यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कि साउथवर्क कॉल्ड टबार्डन में ये लोग जाते हैं. 29 ट्रैवलर्स हैं, टोल्ड यू 31 इंक्लूडिंग द होस्ट. होस्ट का नाम क्या है? इंक्लूडिंग द होस्ट का नाम मैंने आप लोग को लिखवाया यहाँ पे. होस्ट का नाम है हैरी बेली. यस, वी हैव नोटेड इट डाउन. ठीक है, वी हैव नोटेड इट डाउन. They happily agreed to let him join them. And how many tales are supposedly going to be told? There are 4 tales. Each pilgrim जो है, each pilgrim will be telling 4 tales, ठीक है, 2 while going to the shrine and 2 while coming back, ठीक है, 2 while coming back. So general prologue में I told you already, Chaucer is somewhere or the other trying to describe the characters, physical appearance, their traits, etc., what they are wearing, which class do they belong to, etc. Right? He is not straight away telling that which class do they belong to, but through the attire, through the description that is generally being done in the general prologue by Chaucer, we see that yes, of course, वो चीजें जो है वो वेल मैनर में चौसर जो है हर एक कैरेक्टर को और उनकी traits, qualities, personalities, etc. को he is very well defining or describing them, right? So general prologue यहाँ से शुरू होता है. To inform you of the state of every one of all of these as it appeared to me, and who they were, and what was their degree, and also what array they were all in. And with the night, thus we will first begin. So I told you that he is one such person who is trying to mention the way the people are, which class they belong to, and वो पहले ही हमें बता देते कि पहले मैं सबसे पहले किसको define करने लगा हूँ. I am going to define the knight who is there, right? The knight who is there. Now with the knight, I told you that you all were supposed to read the general prologue. अगर हम general prologue की बात करें, you will see that we have the knight. अब ये सिर्फ बोल्डन वर्ड्स को आप लोग लिखेंगे, पूरी पूरी लाइंस को you will not be noting down, ठीक है. He is the noblest of the pilgrims, ठीक है. He is a person who is belonging from the military class. Loyalty आती है, honor, generosity, good manners आते हैं, right. He is a brave and wise man. Just the boldened words, please don't note down extra things. You will waste your time noting those things down, ठीक है. Brave and wise and dressed in a jippon. Jippon क्या होता था? Sort of a tunic, ठीक है, which is stained with rust.
जो उसके कपड़े हैं ना, हमको कपड़ों को देख के लग रहा है कि नाइट के कपड़े ऐसे हैं विच आर स्टेन्ड विद रस्ट, ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी किसी और वॉर के साथ, वॉर से जो है वो लड़के आ रहे हैं, क्योंकि नाइट है। नाइट का काम क्या होता था? नाइट्स वर द पीपल अंडर द किंग हु यूज्ड टू बी इन देयर आर्मी एटसेट्रा, राइट? So with the chain, with the rust on his clothes, which has come with the chain that is hanging, of course, we also are getting an idea that maybe he is still coming after fighting with, fighting a certain sort of war, right? Certain sort of war, or maybe coming from another journey. ठीक है, just the highlighted parts, please. नाइट के बाद उनके बेटे हैं, हु इज नेम्ड एज द स्क्वायर, राइट? द स्क्वायर, ही इज द सेकेंड पर्सन। स्क्वायर जो है, ही इज नाइट का बेटा, 20 years old. अगेन द बोल्डन एंड द हाईलाइटेड पार्ट्स जो मैं आपको बता रही हूँ वही नोट डाउन करेंगे सभी स्टूडेंट्स, राइट? वेरी हैंडसम विथ कर्ली हेयर, ठीक है, वेरी हैंडसम, कर्ली हेयर है उनके, शॉर्ट गाउन पहना हुआ है, मीडियम हाइट है, राइट? शॉर्ट गाउन विद लॉन्ग स्लीव्स which is embroidered, and he loves singing and playing the flute. Your previous year question. He loves singing and playing the flute. Love and romance के साथ he is obsessed. Dutiful बेटा है, अपने पापा जो भी कहते हैं, he fulfills those duties as well, right? He fulfills those duties as well. He has been mentioned as fresh as is the month of May. ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपका ये भी PYQ आया हुआ है। दिस इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगेन हियर, ठीक है? नेक्स्ट कम्स द स्क्वायर। अब स्क्वायर जो है, नाइट और उसके बेटे, स्क्वायर बोल रही हूँ, स्क्वायर, and then we have the knight. Next one we have is the yeoman. Yeoman is accompanying the knight and the knight's son, the squire. उनका ध्यान रखने के लिए yeoman जो है, साथ में yeoman अपनी सर्विस कर रहा है, ठीक है? He is accompanying the knight and he is accompanying the knight and the squire. Yeoman accompanying the knight and the squire. इसके बारे में सिर्फ ये लिखो कि he is wearing green from head to toe. ग्रीन पहना हुआ है, ठीक है? ब्यूटिफुली फेदर्ड पीकॉक, पीकॉक्स वाले जो है एरोज हैं, ऑल इन ग्रीन। एन इमेज ऑफ सेंट क्रिस्टोफर एम्ब्लेजन्ड ऑन हिज चेस्ट, तो उसकी चेस्ट के ऊपर सेंट जो है क्रिस्टोफर, उनकी एम्ब्लेजन्ड जो है इमेज है, एंड देयर इज अ हंटिंग हॉर्न ऑन अ ग्रीन स्ट्रैप. सो ही इज वन सच पर्सन who seems like a forester, right? कि फॉरेस्टर की तरह पूरा ऊपर से नीचे तक ये ढका हुआ है हरे हरे रंग में, है ना? Now what has been another characteristic? He has a brown face, ठीक है? ब्राउन फेस है इसका. अच्छा, PYQs में क्या आया था इसके रिलेटेड? प्रीवियस ये क्वेश्चन में आया था that he is wearing a sheaf of peacock feathers. This is your previous year question, ठीक है? A sheaf of peacock feathers. नाइट के बाद स्क्वायर, स्क्वायर के बाद यॉमन जो उनकी हेल्प कर रहा है, उनकी सेवा करने के लिए आया हुआ है. ही इज वन सच पर्सन जो ऊपर से लेकर नीचे तक इज ड्रेस्ड इन ग्रीन. ही लाइक्स पीकॉक फेदर्स. ही सीम्स लाइक अ फॉरेस्टर बिकॉज ही इज वेयरिंग ग्रीन फ्रॉम टिप टू टो, राइट? You will not note down paragraphs. There is no such point in noting down the entire paragraphs because you are supposed to make sure कि जब रिवाइज करो पैराग्राफ्स नहीं पढ़ने हैं. You are supposed to note down the points and make sure when you are revising you're just going through the pointers as well, right? Not through the paragraphs. Next up we have the prioress. Next up we have the prioress. Is a prim and proper nun. बहुत ही अच्छे से अपना ध्यान रखने वाली prim and proper nun.
अच्छा, इनका नाम जो है ये PYQ में आया हुआ था, हु इज नेम्ड एज एग्लिंटीन, ठीक है, दिस इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दिस इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ही इज द कैरेक्टर हु स्पीक्स फ्रेंच, बिकॉज फ्रेंच वॉज सपोजडली थॉट ऑफ. चौसठ के पहले की एज अगर हम देखते हैं तो नॉर्मैन वाला मैंने आपको बताया 1066, नॉर्मैन से विलियम द कांकरर ब्रॉट द फ्रेंच इन्फ्लुएंस. So French was the language of the court and the people who belonged from the upper class. We see that the prioress जो है, she belongs to the upper class, right? She's a very proper, sophisticated sort of a nun, and she speaks French, right? She speaks French. Very fond of animals she is. अपने पास greyhounds भी हैं. She cries if she sees a mouse stuck in a trap, right? और courtly lady है. Act like a courtly lady, right? She wipes her lip clean of grease, ठीक है, और इनका माथा बहुत चौड़ा है, enormous forehead she has enormous forehead, right? Another nun and 3 priests accompany her. Another fact which is important with regards to the nun here is that I told you that she wears a gold brooch, जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, she wears, this is again your previous year question, she wears a gold brooch जिसके ऊपर लिखा हुआ है Amor Vincit Omnia, which is in Latin. इसका मतलब क्या है? Amor Vincit Omnia का मतलब क्या है? Love conquers all. Told you in the beginning when I was trying to tell you about the characters, which class do they belong to, right? So this is your prioress. ठीक है, ये ब्रोच के ऊपर A लेटर बना हुआ है, which means Amor Vincit Omnia, ठीक है, which stands for Amor Vincit Omnia. Next up we have the monk. ये हमने लिख लिया, the monk. Now the monk is someone, I told you, कल के introduction में I told you, he is very fond, he is not just a monk, he is not following the religious path that is somewhere or the other कि आपको materialistic life नहीं जीनी है. He is not doing that. He is not living the life of a monk though. So but he loves he enjoys hunting. He loves riding horses, right? And that is what we have been asked as the previous year question. ठीक है, this is your PYQ, right? And his horse bridle can be heard jingling. ठीक है, बस ठीक है, इतना important है. He dismisses such strictures. He does not act like he is a monk, right? ये 3 pointers लिखिए, then अगले पेज पे भी कुछ pointers हैं with regards to the monk. ठीक है, so he wears a large love knot pinned at his neck. ठीक है, अब ये lines, since riding and the hunting of the hare were all his love, for no cost would he spare. A love knot in the larger end there was, his head was bald and shone like any glass, right? So his head was bald और वो ऐसे चमकता था जैसे कोई ग्लास चमक रहा हो, ठीक है, and smooth as one anointed was his face. बस ये 2 pointers और लिख लीजिए with regards to the monk. Next up, after the monk we have the friar, right? Friar का नाम भी दिया हुआ है Hubert, right? Friar named, the friar is named as Hubert, right? Religious order का member है, but ये भी follow नहीं करता उन religious orders को. He is jovial, pleasure loving, well spoken and socially agreeable. Confessions को सुनता है, right? And with money he assigns penance, mukti, या मतलब ठीक है, तुम्हें you are relieved of your sin or something like that, right? So he does that. He is very popular with wealthy landowners, right? And he is also popular with innkeepers and barmaids. तो इस इनके related क्या question आया था? He knew the tavern in every town. जो PYQ इनके related आया था,
he knew the tavern well in every town. ठीक है, he is fond of women. I told you already ना, he is fond of women and उनकी शादियां भी करवा देता है, लेकिन either because of the sexual favors or because of the sake of money or something like that. ठीक है, नोट डाउन करिए, ये PYQ रहा है. लेट मी जस्ट मार्क इट विद अ स्टार हियर. ही न्यू द टर्न वेल इन एवरी टाउन. ठीक है, नेक्स्ट अप, दिस वी हैव डन ऑलरेडी. नेक्स्ट अप वी हैव द मर्चेंट. कलरफुल क्लोथ्स ही इज वेयरिंग. फ्लेमिश बीवर हैट पहनता है, ये अलग तरीके की हैट है. ठीक है, ही स्पीक्स कॉन्स्टेंटली ऑफ हिज प्रॉफिट्स. सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मर्चेंट है, अपने प्रॉफिट्स की बात करता रहता है. ठीक है, बोरोइंग मनी but he is in debt also, right? The narrator does not know his name. We don't know his name in the entire Canterbury Tales. Note these things down, please. Right? And he is one such person who is newly and unhappily married. Not happily, but unhappily married. He is newly and unhappily married. ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपके कैरेक्टर्स की डिस्क्रिप्शंस वैसे दी हुई है यहाँ पे बुक पे भी, ऑन पेज नंबर 25 आई थिंक. ठीक है, फ्यू इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स एंड देयर डिस्क्रिप्शन वाले टेबल में. नेक्स्ट we have the clerk. इनका क्वेश्चन previous year question में he has been asked. He is one such person who has learned certain things at Oxford. इसको clerk of Oxford भी बोला जाता है, right? And he is a person who is very fond of books rather than food. So he can devour books rather than food, right? If we try to see in here, he is one such person with a lively tone and enjoys teaching and learning. Gladly would he learn and gladly teach. This has been the previous year question. ये पूछा गया था कि किसके बारे में है. उसको पढ़ना भी पसंद था, फिलोसफी, और उसको पढ़ाना भी पसंद था. It was the clerk of Oxford. The clerk of Oxford. Then we have the man of law. This is one person who likes to appear busy. ठीक है, he takes care to appear even busier than he really is, right? Wise character तो है ही, but shows himself as a very busy man, right? Wealthy landowner है and colorful coat with a striped belt. ये ज़्यादा important नहीं है, इनका previous year question ये आया हुआ है. He wants to and he seems to appear even busier than he actually is. He is the man of law, जो कि वकील, ठीक है, तरीके से इन्फ्लुएंशियल लॉयर है. ये इन्फ्लुएंशियल लॉयर होने के साथ साथ में ही इज अ वेल्दी लैंड ओनर एज वेल. नोट दीज पॉइंटर्स बच्चे. Then we have, after the man of law, we have the Franklin. White bearded landowner, loves fine food and drink. ठीक है, तो इनके घर में हमें हमेशा फिश की स्मेल आती रहेगी. फिश एंड फाउल ऑन हिज ग्राउंड्स एंड ही वुड बी रियली वेरी रेडी टू सर्व ऑल ऑफ दिस, राइट? ही वेयर्स एन एनलस, अ टू एजेड डैगर एंड अ जिप्सर और अ पर्स. जिप्सर यानी कि पर्स अपनी बेल्ट में टांग के रखते हैं हमेशा. ठीक है, तो इनके घर में बहुत सारी हमें फिश की खुशबू आती रहेगी. फिश हमेशा रेडी टू सर्व होगी, राइट? इन द हाउस ऑफ द फ्रैंकलिन. Next up, we have the 5 guildsmen. Just the name. Guilds क्या होती थी उस point of time पे? Guilds were small groups. So there are 5 guildsmen who are having different professions, so on and so forth. So we have a haberdasher, we have the carpenter, the weaver, the dyer, and the tapestry weaver. The compliments the shiny dress. और अपनी city official बनने के लिए each was fit. That all of them were wearing really nice dresses, right? So just the names of the 5 guildsmen and how the narrator, basically the poet, compliments them as well, right?
प्लीज नोट देम डाउन, बहुत चीजें नोट करने वाली हैं आज की क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द कुक। कुक के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। He is one such person who is having an ulcer on his leg. The cook is having an ulcer on his leg. He has been named in the work. इनका नाम क्या है? कुक का नाम क्या है? The cook is named having a name of Roger. ROGER जो है इनका नाम है, and he tells the tale, he tells the taste of the London ale. सिर्फ just taste करके ये लंदन ale यानी लंदन की बियर और ale का टेस्ट बता देते थे कि ये लंदन की है या नहीं. Roger is his name. Could tell the taste of London ale. Could tell or identify, whatever you want to know. So इनकी एक बहुत ही famous dish है, that is the best dish that he cooks because he is a cook, that is minced chicken in white sauce. Minced chicken is his best dish. ठीक है, is his best dish. ठीक है, नोट करें. ठीक है, नेक्स्ट अप वी हैव द शिपमैन. शिपमैन कोर्स क्लोथ का गाउन पहनता है, कीप्स अ डैगर ऑन अ स्ट्रिंग अराउंड हिज नेक. नेक के पास एक डैगर रखता है, राइट. एंड ही इज वन सच पर्सन. शिपमैन जो है, बिकॉज शिप चलाता है तो ये जगह जगह पे वाइन जहां पे स्टोर्ड है ना, ही नोज वेयर द वाइन इज, सो ही स्टील्स वाइन फ्रॉम द मर्चेंट एंड इज ट्रांसपोर्टिंग व्हाइल ही स्लीप्स, राइट. सो वाइन चुराता है ये. ही इज वन सच पर्सन हु स्टील्स द वाइन फ्रॉम द मर्चेंट, क्योंकि मर्चेंट ही तो इधर से उधर जो है ट्रांसफर करवा रहे हैं. What is the name of the ship that they are traveling in? The ship that he has, it's named as Magdalene, right? Named as Magdalene is the ship जो कि शिपमैन की है, ठीक है. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द फिजिशियन. फिजिशियन जो है, ही सोली मोस्ट ऑफ द टाइम रिलाइज ऑन एस्ट्रोलॉजी, राइट. अपने पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए ही रिलाइज ऑन एस्ट्रोलॉजी टू डायग्नोज हिज सिक पेशेंट्स, एंड अपने सिक पेशेंट्स को आगे अपोथेकरीज को भेज देता है, ठीक है. अपोथेकरीज जो दवाई देने वाले हैं, वो उनको प्रिस्क्राइब करते हैं ड्रग्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट. डॉक्टर ऑफ फिजिक इज समबडी. He has studied at the work of all of the famous doctors, but he does not spend much time studying the Bible. So he is not a religious person, right? In the age of Chaucer, we see that there are people who are not following religious traits as well, right? He wears red and blue silk, and his favorite medicine is gold. His favorite medicine is gold. If you will read the general prologue, उसमें ये line लिखी होगी. His favorite medicine is gold. मतलब उसको पैसे से बहुत प्यार है, ठीक है. तभी वो थोड़ा घपला करने की कोशिश में अपने डिस्क्राइब्ड अपोथेकरीज के पास ही लोगों को भेजता है, ठीक है, कि वहीं से मेडिसिन लेंगे ये लोग. So he'll earn commissions in the form of gold as well. Next we have my favorite character, the wife of Bath, right? The wife of Bath skilled cloth maker है, friendly है. She is wearing bright red stockings and a large head dress. बहुत बड़ी सी head dress पहनती है, and ruddy complexion है, right? She is one such person who has a longer prologue than any of the characters, right? She is, जैसे मैंने बोला, seamstress है, तो ये यहीं पे को cloth maker and seamstress में से कुछ भी एक चीज लिख लो, right? She has had 5 husbands and she had 3 pilgrimages to Jerusalem, right? 3 pilgrimage to the Holy Land of
Jerusalem. Husbands at church doth she had 5. कल जब हम heroic couplet discuss कर रहे थे, I made sure that you guys note this particular line down, है ना? Husbands at church doth she had 5. 5 बार शादियां हुई थी इनकी. So that's why she is very very experienced. ठीक है, तो यही आपका PYQ आया हुआ है. 5 husbands, pilgrimages, etc. She is one such person who is very experienced. He has been with different sorts of men, so she knows what kind of people are there out, right? And teeth के बीच में gap है. मैंने आपको बताई थी ये चीज. Her teeth have gaps. She gives good love advice because she is very much experienced, right? She is very much experienced. She is deaf from one ear. एक कान से बहरी है. ठीक है, ठीक है. Deaf from one ear because her 5th husband Jankin slapped her. ठीक है, क्यों स्लैप करा था? Because she burned some pages from his book. इस वजह से. So she has had lots and lots of experience through the manipulation of her 5 husbands. She is deaf from एक कान से बहरी है. And क्यों बहरी है? क्योंकि उनके हस्बैंड जानकिन ने उनको स्ट्राइक करा था with a slap, and because of that particular thing she is deaf from one ear. क्यों करा था? Because उन्होंने उनके वाइफ ऑफ बाथ ने अपने हस्बैंड के ही जो बुक थी, कोई पढ़ रहे थे वो, उसमें से पेजेस जो थे वो निकाल दिए थे, फाड़ दिए थे. Basically she had torn certain pages from the book that Jenkin was reading, and that's why he slapped her really tightly, that she had gone deaf, right? She had gone deaf. Then we have only 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 बचे हैं. Quickly note down करते हैं, right? Then we have the parson. Just the important pointer. Pure of conscience he is, true to the teachings of the Christ. I told you that he is a virtuous character, right? He walks with his hate excommunicating those who cannot pay their teeth. टिथ जो था एक ऐसा टैक्स था जो लेवाई करा जाता था ऑन द लैंड, राइट? व्हेन इट वाज लेविड, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे देयर वर पीपल, द पेजेंट्स, दे कुड नॉट रियली पे दोस टैक्सेस, सो उनको एक्सकम्युनिकेट कर दिया जाता था. So he hates that particular thing, and he believes that a priest must be true. So he's a good, moral, virtuous character, right? He is very much contented with the position that he is already having, right? So this is the parson, a moral character. He is the first, the only चाहे इनका भाई भी moral होगा, लेकिन he is not from the clergy or the religious aspects, no? That's why he is not that's why he is the only one who is the first person that we see as a moral clergyman, because friar is also not true to his religion, monk is also not true to his religion, right? So we see that this thing is being done by the parson. ठीक है बच्चे, let's move forward. After the parson, we have the plowman, who is the parson's brother, who is parson का brother है ये, simply लिख लो parson's brother, right? He loves God, works hard, ठीक है, and his neighbor
for Christ's sake and pays his debts on time. ये इसके important characteristics है, ठीक है? And he is wearing a plain sleeveless garment made for farm work. So whatever he is wearing is justifying what he does. So plowman जो है, he is the brother of the parson. He is also virtuous, moral, hardworking, pays his debts on time and everything. ठीक है? Moving forward, after the parson, we have the miller. Large, stout man, red beard and hairy wart on the end of his nose. ठीक है? तो यहाँ पे एक बड़ा सा wart है, hairy wart है. It means that there is a wart, right? And it has some sort of a hair. ठीक है? So that is there. He enjoys telling body stories. Somewhere or the other, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के the non-veg, right? So we see the stories that are there. They are somewhere or the other which are having some sort of sexual underpinnings. ठीक है? So he is dressed in a white coat with a blue hood. That's all. That's all with regards to the miller. With regards to the miller. एंड इनको अपने बैग पाइप्स जो हैं, बड़े बड़े बैग पाइपर्स होते थे ना उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बैग पाइप बजाना बड़ा पसंद है मिलर को. मिलर चक्की पीसने वाला, आटा पीसने वाला, गेहूं पीसने वाला. ठीक है? तो मिलर जो है रीव के ऊपर स्टोरी बनाता है, रीव जो है मिलर के ऊपर काउंटर स्टोरी बना देते हैं. दोनों जो होती हैं फैबलू होती हैं, राइट? नेक्स्ट अप वी हैव अ मैंसिपल. ठीक है? द मैंसिपल who is working under the lawyers. He is one such person जिनको जो कुछ भी खरीदते हैं उसका पहले भाव जो है कम कर मतलब नीचे आने की कोशिश करवाते हैं. And at that particular time period he buys those things, right? So he is very smart. He is not educated though. He is in charge of making purchases for a temple or a law school. ठीक है? So he waits, good at waiting for prices to come down before he purchases, right? So even though he is uneducated, right, he is not an educated man, but he is very much intelligent. Just note down the things that I have highlighted. Second paragraph में somewhere or the other similar चीज ही लिखी गई है, तो don't note it down. Note down from the first part only the highlighted portions, right? ठीक है? Next up we have the reeve. Reeve, a trained carpenter. Thin irritable man, बड़ा ही ये एक दूसरे को कट करता रहता है. ठीक है? He wears a dark blue coat and a rusty sword. He is always the last rider in their group. And इसको ही चीट किया गया है. तो अगर आपने रीव की स्टोरी सुनी होगी जो मिलर ने कारपेंटर पे सुनाई थी, तो उसमें चीटिंग की बात, ककोल्डिंग, फैबलू में ककोल्डिंग ही तो होती है ना, ककोल्डिंग ऑफ अ स्टूपिड हस्बैंड. So he has been a stupid husband. He has been cheated for years, right? तो मिलर खुद भी चीट हुआ है. चीट इन द सेंस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट हियर इज दैट यहाँ पे लॉर्ड की चीट की बात कर रहे हैं, राइट? बट वी ऑल्सो सी दैट ही हैज बीन चीटेड बाय हिज वाइफ. जब हम रीव के बारे में देखते हैं, जब रीव के ऊपर मिलर स्टोरी सुना रहा होता है कि एलिसन जो है शी स्लीप्स विद निकोलस इवन दो शी इज मैरिड टू अ गाय, राइट? जॉन के साथ उसकी शादी हुई होती है एलिसन की, बट शी स्टिल स्लीप्स विद निकोलस, राइट? Then we have the summoner, the pardoner and the host. Three of them are left. Next up is the summoner, a man of the church, right? Summon करता है people को who have committed crimes. ठीक है? He has pimples all over his face, right? Eyelid swollen है, pimples, and he likes to eat onion, garlic. तो इसको skin disease है, but he still likes to eat onion, leek, strong red wine. Hair जो है वो गिर रहे हैं, garlic, onion, etc. He loves to eat that, right? जब शराब पी लेता है, when he is drunk, he only speaks in Latin. ठीक है? He only speaks in Latin when he is drunk.
the summoner. Note down please. Then we have the pardoner. समनर का फ्रेंड है ये, तो ये भी थोड़ा ट्रेचरस है, एंड ही इज वन सच पर्सन जो लोगों को रेलिक्स वगैरह दिखा के उसके पैसे वगैरह मांगता है. तो अगर आप वो यूट्यूब वाली वीडियो जो मैं बोल रही हूँ, जब आप टेल्स सुनोगे, यू विल सी द टेल्स. सो पार्डनर जो है, ही इज वन सच पर्सन हु इज समनर्स फ्रेंड. ही सेल्स इंटेलिजेंसेस टू पीपल. हेयर आर येलो एज वैक्स, राइट. नो हुड ही वेयर्स. वॉलेट इज फुल ऑफ ऑल द मनी जो इसने लोगों को बहला फुसला के उनसे ली है, रेलिक्स दिखा दिखा के, राइट. हाई वॉइस, लैक ऑफ बियर्ड लीड्स पीपल टू थिंक दैट ही मे बी अ यूनक. तो यूनक, मे बी अ यूनक ही लिख सकते हो, पूरा लाइन लिखने की भी जरूरत नहीं है. जस्ट नोट डाउन दैट ही मे बी अ यूनक बिकॉज ही इज हैविंग लेस बियर्ड, राइट. एंड ही डज कलेक्ट, ही कलेक्ट्स रेलिक्स, ठीक है, रेलिक्स को कलेक्ट करता है. एंड हैज अ पिलो केस विच ही asserts इज आवर लेडीज वेल. हैज a pillow case which he asserts is Our Lady's Veil, right? Note it down. This is the pardoner, जो लोगों के sins pardon करने के लिए उनको indulgences बेचता है. ठीक है? That's it. And we have the last one as the host. अच्छा, one more thing. Our Lady's Veil. Our Lady कौन है? Mary, Virgin Mary. तो ही इज सेइंग दैट ही इज हैविंग अ वर्जिन मैरी का क्या है, वेल है उसके पास, ठीक है. जो क्रिश्चियनिटी में लड़कियां शादी के टाइम पे नहीं पहनती, वैसी वेल्स होती है ना. तो लेडी, ही इज सेइंग दैट इट इज, पिलो केस को दिखा के बोलता है, एंड पीपल आर लाइक, ओ माय गॉड, प्लीज जस्ट शो द रेलिक टू अस एंड वील पे टू यू. सो पीपल आर पेइंग हिम मनी, राइट, विद रिगार्ड्स टू व्हाटएवर ही इज शोइंग, इवन इफ इट इज नकली, राइट. सो that is what we have. Next up, and the last one we have, is the owner of the tavern. Is the owner of the tavern, who is the host, Harry Bailey, right. And यही एक आइडिया, यही आइडिया आते लेके आते हैं, he comes up with the idea कि people will tell tales, right, two while going, two while coming back. And then इन्होंने बोला कि जो भी जीतेगा एंड में ये कंपटीशन होगा, जिसकी बेस्ट टेल्स होंगी, he would be given a free meal at the tavern, right. अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं with regards to the tales. Let's note them down. With regards to the genres, कौन कौन से genre में कौन कौन सी टेल दिखी गई है. अगर हम genres की बात करते हैं, if we try to talk about the genres here, right, number one we have fabulou, right. fabulou में कौन सी टेल्स बताई गई हैं? मिलर्स टेल, रीव्स टेल, शिपमैन्स टेल. फैब्ल्यू पता है ना, हम लोग ने डिस्कस करा हुआ है लास्ट क्लास में, फैब्ल्यू. देन वी हैव कोर्टली रोमांस. कोर्टली रोमांस में व्हाट आर द टेल्स दैट वी हैव इन हियर? वी हैव द नाइट्स टेल. नाइट, पैलेमन एंड आर्काइटी, दो ब्रदर्स होते हैं, उनको एक ही लड़की के साथ, एमिली के साथ प्यार हो जाता है, उनकी स्टोरी है. सो नाइट कोर्टली खुद भी है, सो ही टेल्स द टेल ऑफ द कोर्टली रोमांस. इट इज द नाइट्स टेल, ठीक है. नंबर 3 वी हैव ब्रेटन्स ले, ठीक है. ब्रिटेन के बारे में, ब्रेटन्स ले, ले मतलब स्टोरी, ठीक है. इट इज
द फ्रैंकलिन टेल, नंबर 4 वी हैव सरमन, पार्सन देता है वो, क्योंकि वो sermon is given by the Parson's Tale. Next, we have Saint's Legend. Number 5, Saint's Legends. ठीक है, Saint's Legend हमें किस में देखने के लिए मिलते हैं? The Second Nun's Tale and the Prioress Tale. दो टेल्स में देखने के लिए मिलते हैं. Number 6, we have Preacher's Exemplum, right? We have Exemplum, the Pardoner's Tale. Exemplum क्या होता है? Example, ठीक है? Exemplum, we have the Pardoner's Tale, greedy friends वाली, ठीक है? Next, we have Beast Fable, Nun Priest की टेल में Beast Fable है. Number 7, Beast Fable. In the Nun Priest's Tale, the Nun Priest's Tale. Next up, number 8, we have Oriental Tale. तो Oriental Tale स्क्वायर सुनाता है, जिसमें हमें somewhere or the other the areas of थोड़ा सा ओरिएंटल ईस्टर्न सेटिंग देखने के लिए मिलती है, ठीक है? तो ओरिएंटल टेल इज टोल्ड बाय नाइट के बेटे स्क्वायर. ओरिएंटल टेल स्क्वायर बताता है, ठीक है? द स्क्वायर्स टेल. और क्या PYQ आया था? मैंने आपको बताया था चौसर का डायलेक्ट. कौन सा था? हमने क्या करा था? ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट. दिस इज योर PYQ, ठीक है? दिस इज योर PYQ. नेक्स्ट अप, दो टेल्स, दो कैरेक्टर्स जो जनरल प्रोलोग में मेंशन नहीं है, ठीक है? ये नेक्स्ट फैक्ट है, आप लोग इसको लिखिए. देन आई विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज टू नोट दिस फैक्ट डाउन. कुछ और फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू योर कैंटरबरी टेल्स. ठीक है? टू कैरेक्टर्स not mentioned in the general prologue. कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं वो? The nun priest and the second nun. The nun priest and the second nun. This is one फैक्ट आप लोग के लिए. नेक्स्ट अप, वी हैव नाइट की टेल किससे इंस्पायर्ड थी? इंस्पायर्ड एंड बेस्ड ऑन बोकाशियोज टेल नेम्ड टेसीडा, ठीक है? द नाइट्स टेल बोकाशियो का वर्क था, टेसीडा उससे इंस्पायर थी, ठीक है? अच्छा, अब आप क्या करेंगे? व्हाट इज योर होमवर्क? व्हाट इज गोइंग टू बी योर होमवर्क? दिस इज व्हाट वी वर सपोज टू कवर. अब कल हम लोग क्या कर लेंगे? कल हम चौसर के सारे कंटेम्प्रेरीज को कवर कर लेंगे. परसों वी विल बी हैविंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है? सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड.
in today's lecture, right? Note down कर लीजिए, please. Right? Now homework for tomorrow is going to be tales को you will read. You will also come reading जो हम थोड़ा सा कल करेंगे. You will read Pius the Plowman की summary जो आपके works में upload हो गई है. Pius the Plowman by William Langland. Langland का work है. You will read Gower के 3 works हैं. Speculum Medantis, Vox Clemantis and Confessio Amantis. तो गावर के जो 3 मेजर वर्क्स हैं वही आप एक बारी उनको ऊपर ऊपर से यू विल रीड फ्रॉम योर बुक एज वेल. लेट मी जस्ट सी हाउ मच ऑफ इट हैज बीन गिवन इन हियर. हाँ, विलियम लैंगलैंड का पायस द प्लाउमैन दिया हुआ है, इसको पढ़ के आइएगा एक बारी. जॉन गावर कन्फेशियो अमांथिस इज गिवन बट देयर इज नो मेंशन ऑफ स्पेकुलम मेदांथिस वॉक क्लेमांथिस. इसको थोड़ा सा ऑनलाइन कहीं से भी एंड मे बी आई हैव जो भी हैंडआउट्स अपलोड कराए उसमें हो सकता है, थोड़ा थोड़ा उसको रीड कर लीजिएगा. एंड यस, रीड अ लिटिल बिट अबाउट मैंडेविल का ट्रैवल्स ऑफ सर जॉन मैंडेविल. इट वॉज एन इमेजिनरी कैरेक्टर ऐसे बोला जाता है बट मे बी समबडी रियली ट्रैवल्ड बट गेव दिस पर्सोना a different name. ठीक है, so that's all. We will be covering this entire thing in tomorrow's lecture. Then कुछ और facts related to यही works जो homework में दिए हैं मैं आप लोग को देती रहूंगी साथ साथ में. ठीक है, so let's meet tomorrow and I hope you guys are following the routine of consistently doing your homework. ठीक है, thank you so much. Have a good day. Bye bye.